Assalamualaikum everyone, this is Hussein and I am an English teacher. Welcome to my channel Bingo English. I hope that you guys must be good, and it's been a long time that I haven't uploaded my video, so that's why I thought that I think it's time to upload the video because I was extremely busy in online classes. I conduct online classes in school as well, so that's why I was extremely busy. But now you are going to have the topic. I think it's going to be your last topic, which is future perfect continuous. Yeah, we will study about future perfect continuous, and it's also interesting topic. Most people say that we don't have this tense. Why? I will tell you in the video. We must use this sentence, but yeah, it's not useful. It's not useful a lot, but we must know how we can make the sentence according to the structure. So I think after this video intermediate level will be started, so you will be taught modal verbs, so get ready for this as well. But I would say that kindly please like my video if you like it, and subscribe my channel and share with your friends. So let's begin. So guys, as you can see, I have written definition with formation as well, and with the help of this I will make you understand that how you guys can make a simple sentence of future perfect continuous. And then if you are able to make a simple sentence, so then you will be able to make the hard sentence as well, कि आप hard sentence भी बना सकते हैं. और उसके बाद मगर इसमें कुछ difference है. I would like to tell you the difference between future continuous and future perfect continuous as well. But firstly we are going to read the definition. हम इसकी definition पढ़ेंगे. इसकी definition में बात ये है, we use this tense to talk about an ongoing action. अच्छा, ये tense यानी ये यूज़ किया जाता है, हम इसको यूज़ करते हैं tense में जो बात करता है ongoing, जो एक्शन चल रहा हो. अब एक्शन कौन सा? एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस, यानी जो प्रोग्रेस में होगा, जो फ्यूचर में सेंटेंस प्रोग्रेस में होगा, जो चल रहा होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि वो जा रहा होगा, वो काम कर रहा हो, इस तरह की. अब इन द फ्यूचर एंड और फ्यूचर में, एंड इट ऑल्सो मैंशंस दैट द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ दैट एक्शन एट अ पर्टिकुलर टाइम. अच्छा, ये मेंशंस भी करता है कि उसके जो पर्टिकुलर टाइम होगा कि कितने टाइम से. समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं बोलूँ कि वो 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा. आर यू गेटिंग? वो सुबह से कपड़े धो रही होगी, यानी फ्यूचर के टाइम ड्यूरेशन और लेंथ के बारे में बता रहा है कि वो तो प्रोग्रेस में तो होगा, वो काम चल रहा होगा, बट और मज़ीद ये होगा. बट इसका सेंटेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूस मैंने पढ़ाया था, उसमें ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं. कहते हैं कि सर मैं जा रहा हूँगा. अब ये सेंटेंस मुझे बताया फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. ये सिंपल सेंटेंस है. आई विल बी गोइंग, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ. आई विल बी वर्किंग फॉर यू, ये सिंपल है. विल बी वर्किंग. अच्छा, इसका डिफरेंट इसमें यहाँ पे बताया गया है कि और ये मेंशन भी करते हैं ड्यूरेशन. जहाँ पे भी टाइम ड्यूरेशन की बात आ जाए, टाइम अगर मेंशन हो जाए, जैसे कि मेरी अम्मी सुबह से खाना पका रही होंगी, क्या बनेगा? वो सेंटेंस इसमें आएगा. कैसे आएगा? नाउ आई एम गोइंग टू राइट अवर हियर माई मदर. फॉर्मेशन में भी बताऊंगा मैं, अभी एग्जाम्पल देता हूँ. माई मदर will have been cooking food since morning. ये सेंटेंस बेसिकली ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये सेंटेंस का यूज़ नहीं है. यस, इट्स extremely right कि we don't use this sentence a lot. We sometimes this situation comes, but otherwise we don't use this sentence a lot. We always use future simple, future continuous or future perfect sometimes. So that's why कि लोग ये कहते हैं कि ये है ही नहीं. No, it exists. डोंट थिंक कि ये सेंटेंस ये नहीं है मौजूद, ये है. इसके सेंटेंस मैंने बताया अभी आपको कि मेरी अम्मी सुबह से, माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, सुबह से. सो ये जो सिंस मॉर्निंग लग रहा है, ये ड्यूरेशन और लेंथ की बात कर रहा है. आर यू गेटिंग? टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है. अब मैं आपसे कहूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँगा,
आई विल बी टीचिंग। सिंपल सेंटेंस आई विल बी टीचिंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। बट इफ़ आई से टू यू दैट मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपको 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँगा भाई मैं तो, सही है। सो व्हाट वुड बी द सेंटेंस? आई विल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। आर यू गेटिंग गाइस? कि वो काम जो एक्शन में आप कर रहे होंगे मुसलसल और उसमें टाइम ड्यूरेशन और लेंथ की भी बात की जा रही होगी, वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। फ्यूचर परफेक्ट में बताया था वो काम जो हो चुका होगा फ्यूचर में, आपने स्टार्ट किया, हो सकता है पास्ट में स्टार्ट किया होगा। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव इटन फूड, वो फ्यूचर परफेक्ट था। बट मैं खाना खा रहा हूँगा 5 मिनट से, मैं नहीं 5 मिनट से खाना खा रहा हूँगा, ऐसे हम बोलते हैं। अगर सेंटेंस अगर हमें पता हो, यार मैं 2 घंटे से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँगा, मैं अगले साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, सही है। अगले साल आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस नेक्स्ट ईयर, या सिंस नेक्स्ट ईयर, या यू कैन से, या मैं 1 साल के लिए पढ़ा रहा हूँगा, यानी मैं 1 साल के लिए पढ़ा रहा हूँगा, 1 साल के लिए पढ़ा रहा हूँगा। सो आप ये कह सकते हैं कि आई विल बी टीचिंग फॉर 1 ईयर। मगर ये सेंटेंस नहीं, इसके सेंटेंस जो भी टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही हो कि मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूँगा 1 साल के लिए, इसमें कोई इतना डिफरेंस इतना होता नहीं है। बट ज़्यादातर सेंटेंस यही बनता है कि अगर आप 1 साल के लिए आ रहा है तो उसमें आप फ्यूचर कंटिन्यूस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर सिचुएशन के हिसाब से कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँगा, आई विल बी डूइंग वर्क फॉर यू। अब आपने बोला सर, यानी आपने ये सिंपल सेंटेंस बनाया फ्यूचर का। अब हम ये बोलें कि मैं तुम्हारे लिए खाना पका रहा हूँगा, सो ये किस सेंटेंस में बनेगा? ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस में बनेगा। मगर अगर मैं ये बोलूँ मैं तुम्हारे लिए सुबह से खाना बना रहा हूँगा, जो टाइम ड्यूरेशन फ्यूचर की बात करता है, सिंपल है, ज़्यादा मैं हार्ड नहीं कर रहा। सो इसके नेगेटिव भी बना सकते हैं, माई मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। और इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ, सो सिंस और फॉर की मैंने ऑलरेडी आई हैव मेड द वीडियो एंड आई थिंक आई मे शेयर in the description as well. I can give you the link, you can watch that one video as well, the difference between since or for. I have in the column I have made two, I have shown the difference between both of them. since और for का मैंने difference भी show कराया है उस वीडियो में। और उसके अलावा इसकी फॉर्मेशन में देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। यहाँ पे आप if time if necessary लगा दें, if time if necessary मेंशन करना ज़रूरी है, if अगर टाइम ज़रूरी है, ठीक है, वो काम जो चल रहा होगा। अब ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एडवर्ब, और इसमें विल नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट प्लस। क्या वो सुबह से काम कर रहा होगा? विल ही हैव बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग। क्या तुम सुबह से नाश्ता कर रहे होगे? विल यू हैव बीन हैविंग ब्रेकफास्ट, या फिर विल यू हैव बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। सिंस हमेशा हमने बताया था टाइम ड्यूरेशन का अगर इशू हो तो वो आप सिंस और फोर से पता कर लेंगे, और यानी मेरी वीडियो से जो मैं लिंक में प्रोवाइड करूँगा। और इसके अलावा यहाँ तक कि यही है, आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉट दैट हाउ यू गाइज कैन मेक द सेंटेंस। और इसके अलावा यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं, और टाइम ड्यूरेशन का बता दिया, और डिफरेंस का भी बताया है कि इसका डिफरेंस। और अगर कोई आपसे ये सवाल करता है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कितने टाइम से इंग्लिश पढ़ा रहे हो, तो इसका आंसर आप किस में देंगे? इसका आंसर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देंगे, फ्यूचर नहीं लगा देना कि मैं 2 साल। नो, ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बहुत ही कम यूज़ होता है। जैसे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 years। इस तरीके से आई कैन गिव द आंसर इन एनी वे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, यू कैन गिव द आंसर इन अफर्मेटिव, इट्स इंट्रोगेटिव। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग बुक, कितने टाइम से बुक पढ़ रहे हो तुम। सो इन दिस वे यू गाइज कैन गिव द आंसर इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। आपने मेरी सारी वीडियो देखनी है, देन यू विल बी एबल टू
make a sentence of it, and inshallah one day will be there when you will be speaking fluent way. But it's all about practice. You will have to do practice to be a fluent speaker. Okay, so inshallah we will meet in next video where you will be taught modal verbs. Yeah, I will start to teach you modal verbs from the next video. Intermediate level will be started. So till here, take care of yourself. Allah Hafiz, and subscribe my channel. And if you like it, so press the bell icon, press the thumb like this one, and please subscribe my channel and share my video with your friends as well. Thank you so much. Allah Hafiz.